This conference will now Today be is the 10th recorded. lecture in this autoimmune disease series. For today's session, we have an eminent clinician, Dr. Pradnya Aptekar Madam. She has done BAMS with gold medal from Pune University, MS in Stri Rog and Prasuti Tantra, MA Sanskrit, and currently doing PhD in Stri Rog and Prasuti Tantra. She has done laparoscopy, colposcopy, and IVF certified courses. She is practicing as Ayurvedic gynecologist in Thane since 2001. She does all minor and major gynec surgeries and deliveries. She is the president of Ayurved Vyaspeeth Thane branch. She is a former professor in the Department of Stri Rog and Prasuti Tantra in YMT Medical College. She served there for 17 years. She has written many articles in local newspapers and magazines. She has been bestowed with Vaidya Khadiwale Trust, Vaidya Lakshmibai Borwankar Sri Vaidya Puraskar in 2017. Also Karya Bhushan Puraskar in 2021 by Rashtriya Shikshan Mandal Pune. She is the editor of the book PCOD published by Ayurved Vyaspeeth. There are few publications on her name. Few are efficacy of Ayurvedic medicines on thin endometrium, Asherman syndrome, clinical evaluation of the spermatogenic activity of the root extract of ashwagandha in oligospermic males, a pilot study. With this brief introduction, I request Madam to start her session. Thank you. Madam, please start. Yes. Thank you, Vaidya Chinmay, for introducing me and giving me an opportunity to deliver a lecture on a good subject, I would say, autoimmune disorders and the female reproductive system. For this lecture, actually, I have to study a lot. So I again express my thanks towards the organizers of eShreyas Learning Academy. So we will start with autoimmune disorders. As everyone, I think this is the fifth or sixth lecture in the series. So maybe the delegates are aware of the autoimmune disorders, but we will just have a rapid recap regarding autoimmunity and with respect to the female reproductive system. So as you know, that autoimmune disease happens when your immune system cannot tell the difference between your own cells and foreign cells, causing the body to attack healthy cells. So there is one study which estimated that about 80% of all the patients diagnosed with autoimmune disorders, those are women. Scientists hypothesized that this may be related to genetic variations or the hormonal changes. There are more than 100 types of autoimmune disorders or the diseases. So here you can see the autoimmunity and the endocrine linkage. Where neurological autoimmune disease, we can see multiple sclerosis, myasthenia gravis. Then in endocrine, we can see diabetes mellitus, Graves' disease. Then there is psoriasis, rheumatoid arthritis, Rogen syndrome, ulcerative colitis, etc. So here you can see the disease impact ratio in women. Actually, from the middle of 19th century, it is known that the endocrine and immune system interact bidirectionally in different processes that ensure organism homeostasis. Endocrine and nervous system have a pivotal role in balancing pro and anti-inflammatory functions of immune system and constitute a complex circadian neuroendocrine network. Autoimmune disease have in fact
a complex pathogenic origin in which the importance of endocrine system was demonstrated. Then the adrenal hormones, then the sex hormones, then vitamin D, melatonin, prolactin, all are important. They all contribute to the homeostasis of the immune system. Autoimmune disease affect women at a much larger rate than the other than men. Although the differences in sex steroids probably play a role in this sexual dimorphism, the effects of sex steroids on the immune system and the mechanism by which those affects the immunity, those are uncertain right now. So here you can see the immune system in short, where we can see the natural immunity, or we can call it innate immunity, and the acquired immunity. The natural immunity consists of granulocytes and monocytes. Granulocytes consist neutrophils, eosinophils and basophils, and monocytes. Then there are some macrophages. Then the important factors are natural killer cells, that is NK cells, dendritic cells, and with relation to reproductive system, the important cells are endothelial cells and the thrombocytes. In acquired immunity, you can see there the T lymphocytes and the B lymphocytes. This is the adaptive immunity. So here you can see in short how the immune system works. Here the cellular components of the specific immune response are T lymphocytes and the B lymphocytes, that is the immunoglobulin producing B lymphocytes. T lymphocytes produce the cytokines and can also directly kill the foreign or the infected cells. Here you can see the T lymphocytes produce the CD4 count and CD8 plus count, that is T cells, and the beta lymphocytes produce antibodies. Here in this slide we can see how the immunity works in short. Here you can see how the neutrophil, macrophage and the natural killer cell attacks on the foreign body. So here you can see these cells attack microbes that have entered the circulation. They do they undergo the phagocytosis, and for that neutrophils, monocytes and macrophages, those are used, and causes the inflammation. Then the natural killer cells, they infect the cell and kill the cell, and they produce then all other cells, they can produce the cytokines to enhance non-specific immune and specific immune response. So by inflammation or activation of adaptive response or killing the infected cells, all these processes are included in the immunity. Then here just we can see one slide, upper one, your right side, you can see the neutrophils in the immune system. So whenever there is infection or something enters into the blood vessels, then you can see the neutrophil senses the bacteria. The neutrophil slows and squeezes through the blood vessel. Neutrophil moves towards bacteria which have been marked by the antibodies for the ingestion. Neutrophil engulfs and destroys the marked bacteria. So you can see this is a very good picture actually. So you can see that. The neutrophils are the first cells recruited from the bloodstream to the sites of infection. They are terminally differentiated cells, so they are incapable of further cell division and synthesize only very low levels of RNA and protein. Neutrophils are an essential component of the acute inflammatory response and resolution of microbial infection. A significant increase in granulocyte number was found during pregnancy and the luteal phase as compared to the follicular phase of normal ovarian cycle.
So in the clinical practice, we can see high neutrophil count normally in the pregnant woman. So the granulocyte constitute approximately 65% of all white blood cells and can be divided into basophils 1%, eosinophils 3 to 5%, neutrophils 90 to 95%. Since neutrophils constitute the 90 to 95% of granulocytes, they are the best investigated granulocyte population as far as the effects of sex hormones are concerned. Then we can see the action of monocytes. One of the best known effects of sex hormones on monocytes is the effect of monocyte count. So here we can see the monocytes constitute between 5 to 10% of circulating white blood cells, and they have very short life and spending approximately 24 hours in the blood. Hence, with the treatment, the CBC, the differential count of monocyte can be changed within 24 hours. So with the treatment, we can see all those differences. So during menopause and in males, there is an increase in blood monocyte number, and as compared to females to the follicular phase. Then there is decreasing effect of estrogen and progesterone on monocyte number, maybe due to sex hormones inducing mitotic arrest and apoptosis in monocytes. So whenever there is a high levels of estrogen, low levels of progesterone, they will affect the immunity and they will affect the monocyte numbers. Monocytes are able to ingest and kill microorganisms by the process of phagocytosis, and a very important function of monocytes is to direct immune response by the production of cytokines. This is the important function. Then in pregnancy, the placenta plays a major role in monocyte activation and maturation during preeclampsia by direct contact by producing factors which may further activate the mature monocytes. So this is again a very much important function in clinical practice. Then activated monocyte produce cytokines, further activating the monocytes and the other cells. So this is like chain reaction. So this results in a generalized inflammatory response, characteristic of preeclampsia, and finally resulting into hypertension and proteinuria. So here you can see we will see about the cytokines and the autoimmune disease. So as you know, cytokine is derived from the combination of two Greek words. Cyto means cell and kinos means movement. That means cytokines are cell signaling molecules that aid cell-to-cell communication in immune responses and stimulate the movement of cells toward the site of inflammation, infection, or trauma. So here in the picture right hand side, you can see the cytokine moves towards lymphocyte, macrophage, granulocyte, fibroblast, mast cell. And in pregnancy, it is important for the endothelial cells, again, which are in the layer of endometrium. So here autoimmune disease it can result from complex interaction among different immune cell types, including both T and B lymphocytes and professional antigen presenting cells such as macrophages and dendritic cells. These cellular interactions result into autoaggressive response that target a number of cell types in different tissues and organs in a relatively large number of autoimmune disorders. Just a minute, 1 second के लिए break लेती हूँ. Sorry for the disturbance. Actually, I have to open the door. Actually, sorry. So, where are we? I think the cellular interactions that results into autoaggressive response that target a number of different cell types in different tissues and organs in a relatively large number of autoimmune disorders. So अलग अलग धातुओं पे अलग अलग
टिश्यूज पे साइटोकिनिन एक्शन होता है तो अलग अलग डिजीजेस डेवलप हो जाते हैं. Although the etiology of most autoimmune disorders are unknown, recent years there are some important advances in our understanding of how the different immune cell types involved in autoimmunity communicate with one another, how they trigger autoimmune inflammation, how they cause tissue damage. So in this phenomena, cytokines play a pivotal role in the pathogenesis of autoimmune diseases. The precise triggers for the breakdown of self-tolerance and the subsequent events leading to the induction of pathogenic autoimmune responses remain to be defined for most of naturally occurring autoimmune diseases. Here you can see the how the cytokines, what are the ingredients or how they form. So it is exist in peptide, protein, glycoprotein forms with a sugar attached. Then it is they are synthesized in Golgi apparatus. So I think the first year physiology, the cell organelles, I think, or the 7th or 8th standard biology also. So Golgi cytokines are synthesized in Golgi apparatus and may traffic through the endoplasmic reticulum to be released as soluble mediators, or they may remain membrane bound, and they may process into cystosolic forms, and they can traffic intracellularly, even returning to the nucleus where they can act as transcriptional regulators. So examples of cytokines, अगर आप देखते हैं तो there are hundreds of cytokines. So like agents like interleukin and interferon, which are involved in regulating the immune system's response to the inflammation and infection. So सबको कोरोना के इन्फेक्शन में पता है IL-6 बढ़ रहा था, सब हम देख रहे. तो फर्स्ट वेव में वो पता नहीं चला था, लेकिन सेकंड वेव में IL-6 बढ़ रहा था, D dimer बढ़ रहा था. So the thrombocytes also get involved in these immune disorders. So you can see, you can study about this. There are multiple IL-6, IL-8, IL-11, interleukin, then the interferon, then TNF. There are multiple cytokines which act as an important factor in autoimmune diseases. So now, how the immune response is necessary for the healthy pregnancy. So normally कैसे होता है कि immune response तो होता ही है, but how that converted into autoimmune, this is the main important thing. So for that we have to study the normal immune response also. So here this is the during the implantation, the immune processes during implantation. Because many times in IVF or in artificial reproductive technology or in natural pregnancies also, we can see the implantation failures. So for that we should see the immune response which is necessary for the healthy pregnancy. So the blastocyst attached to and invades the maternal uterine endometrium. This process is accompanied by an evolutionary conserved inflammatory process or the inflammatory responses, which includes IL-6, then IL-1 and LIF. So key cells types necessary for early pregnancy, as demonstrated by mouse models, include dendritic cells, which are essential for the decidualization, and macrophages, which are essential for the maintenance of corpus luteum in the ovary. NK cells, that is natural killer cells, directly surround the trophoblast after implantation. So this is the natural immune response, you can see. So whenever anything goes wrong in this, that will leads to implantation failure. Then in the first trimester, during the development of placenta, in the first trimester, immune cells including NK cells and mast cells, which are necessary for uterine spiral artery remodeling, as demonstrated by mouse models. This is the reference I have given, the paper
in which we can see all these references and the studies. So the cytokinin IFN gamma is also necessary for the process of development of placenta. We can see this in the mouse models, so which is similar to the humans also. And during the labor, that is the parturition, during the time of delivery, the delivery process is also mediated by an inflammatory response. Macrophages and neutrophils infiltrate the uterine myometrium. Then IL-1 beta is secreted and induces the muscle contraction. IL-6 is necessary for an on-time parturition. This experiment is done again in mouse models, but which is again similar to the humans. So again, anything goes wrong in this process, that will lead to premature labor, early abortions, etc. Then in this paper, the reference has been given here. So here also antimicrobial protective mechanism at the placenta and decidua. So this is the very much important slide you can see here. Implantation and placental development are key vulnerability points during which pregnancy loss and complication arise. Implantation occurs at about day 8 to 9 in humans, that is after ovulation. Just after hatching from the zona pellucida, the blastocyst, which is surrounded by a layer of trophoectoderm, adheres to the uterine epithelium. This initial attachment is followed by trophoblast differentiation and invasion of the endometrium. There are high rates of implantation failure both after natural conception and with the artificial, that is the IVF treatments, which may be due to genetic abnormalities also. And the failure to hatch or the maternal factors including endometrial abnormalities, immunological imbalance at the endometrium, and the abnormal blood clotting. These are also other factors which leads to high rates of implantation failure. The first trimester is critical period of the placental development, and the origins of many common pregnancy complications can be tracked by abnormal placental development in the first trimester. So the two key processes, that is the placental development, the two key processes of placental developments are the villus and the extravillus trophoblast formation. Here you can see the villus means these villi, okay, chorionic villi, and in between the two villi this is a dark pink shade, that is the brownish shade. It is the villus area or the extravillus space where the gaseous exchange take place. So the chorionic villi are the site of gas and nutrient exchange between the maternal blood and the fetal blood. This exchange occurs at the interface between fetal endothelial cells, which run through the core of villi and the maternal blood in which the villi are bathed. So the villi are covered with a layer of multinucleated fused syncytiotrophoblasts. This is actually, I think, आपको थोड़ा heavy पड़ रहा होगा. This is the part of embryology actually. But here where the autoimmunity work which leads to first trimester abortions, which directly contact these villi are which directly contact the maternal blood. Then the abnormal villus development can lead to early pregnancy loss. Then IUGR, that is intrauterine growth retardation, preeclampsia, then the pregnancy induced hypertension.
then where we can see the elevated blood pressure, proteinuria, and other signs of organ damage, including impaired liver function, renal insufficiency, cerebral or the visual symptoms, and the thrombocytopenia. So, which lead to DIC, that is the disseminated intravascular coagulation, that leads to maternal death. So, this is the chain reaction. अगर हमने रोका नहीं है पहले ही तो that complications happens in chain reaction. So at the chorionic villi and intervillous space, the syncytiotrophoblasts continuously express IFN gamma and exosomes, which confer resistance to viruses and other known torch pathogens. You are aware of torch, that is Toxoplasma, Rubella, CMV and herpes viruses, and the neighboring cells. Maternal IgG is transferred to the fetus using FcRn receptors starting at 13 weeks of gestation in humans. So natural immunity also always prevents this kind of pathogens to enter into the placenta and further to the fetus. At the anchoring villi and decidua, that is the junction of the uteroplacental circulation, the natural killer cells are capable of killing virus infected cells and located in close proximity of potential portals of viral entry. NK cells surround extravillous trophoblast, spiral arteries. Then pathogen specific CD8 T cells are enriched in human decidua. They have the potential to be cytotoxic upon ex vivo stimulation, that is against the antigens. Then we can see the action of monocytes in the uteroplacental circulation. We will discuss how the immune cells and immune effectors play an important role in regulating extravillous trophoblast invasion, and inflammatory insults such as infection can disrupt the placental development. Here you can see the spiral arteries, then monocytes which are yellow in color, activated monocytes, these are red in color. So here you can see the activated monocyte, these are normal monocytes. This is placenta and these are spiral arteries. So monocytes gets into the intervillous space via the spiral arteries. Spiral arteries के माध्यम से वो बाहर आते हैं. Then space they can come into direct contact with the fetal syncytiotrophoblasts, that is the SYN. Then the exosome, cytokines, antigenic factors, such factors activate the monocytes. ये निर्माण होने के बाद ये नॉर्मल मोनोसाइट्स को और एक्टिवेट करते हैं, जैसे मैंने कहा चेन रिएक्शन. Then activated monocytes leave the intervillous space via placental veins and get into the maternal circulation. So now we will discuss this in detail. As healthy pregnancy is associated with activation and maturation of monocytes. There is always activation and maturation. So we hypothesize that this is induced by indirect contact of monocytes with syncytiotrophoblasts of the placenta. Okay, these factors, but also monocytes themselves influence each other immune cells and endothelial cells, shaping the immunoresponse during pregnancy. During preeclampsia, poor placentation results in production of more and more different factors from the diseased placenta. This may induce the further activation and maturation of monocytes. So, improper placentation, improper remodeling of spiral arteries during pregnancy, that is during implantation, if it goes in wrong way or improper,
then this can leads to diseased placenta, and that leads to more and more production of different factors. This may induce further activation and maturation of monocytes, and this influence the other immune cells and the endothelial cells. Then activated monocyte produce cytokines, जो हमने देखा था इसके पहले. Then the further activation of the monocytes and other cells. Then this is the generalized inflammatory response. So उसकी वजह से शोफ, एडिमा, ये सब लक्षण हमें दिखाई देते हैं. So this is the generalized inflammatory response leads to characteristic symptoms of preeclampsia, which are hypertension and proteinuria. Again, the proteinuria means the endothelial cells of kidney also get hampered with these factors. Although at first sight, it seems dangerous to have pro-inflammatory situation in healthy pregnancy. So you should aware of that कि there is always a pro-inflammatory situation, vulnerable. इसीलिए हमारे शास्त्र में sinking ship की उपमा दी है pregnant and Switika को. So that is always they have the pro-inflammatory situation in healthy pregnancy. Activation of these cells during pregnancy seems to play a physiological role in pregnancy, and it has been suggested that the pregnancy-induced monocyte activation is needed in order to compensate for the changes in the adaptive immune response during pregnancy. And that monocyte activation may be needed to protect the immunological integrity of the mother. लेकिन ये जब तक इधर तक ही सीमित है तो वो नॉर्मल लेवल पे रहता है. अदरवाइज कंटिन्यूस अगर चेन रिएक्शन में गया, प्रो इन्फ्लेमेशन अगर लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, देन अदर सिम्टम्स जो है वो तैयार हो जाते हैं. बट इट इज अगेन इट रिमेन्स अननोन व्हाई द मोनोसाइट मैचुरेशन ऑकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ये पता नहीं है किसी को. नाउ आयुर्वेद इज द साइंस व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू फिल सच गैप्स, आई थिंक. So we will see this afterwards. Then here you can see the response in the healthy placentation and the poor placentation. So उसमें सेकंड बी जो फिगर है उसमें आपको दिखाई देगी कि साइटोकाइंस जो है वो निर्माण ज्यादा होते हैं. तो फर्स्ट हेल्दी प्लेसेंटेशन में मैचुरेशन के बाद भी जो मोनोसाइट्स है वो साइटोकाइंस इतना प्रोड्यूस नहीं करते हैं. बट द साइटोकाइंस इज द, जैसे हमने कहा कि दो इन्फ्लेमेशन के लिए होता है, वो अगर प्री एक्लाम्शिया और पुअर प्लेसेंटेशन के इसमें दिखाई देता है. सो इसमें ड्यूरिंग हेल्दी प्रेगनेंसी, लुक एट द ए फिगर. द प्लेसेंटा बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड बाय प्रोड्यूसिंग द सोल्यूबल फैक्टर्स activates monocyte subsets and induces increased maturation of classical monocyte toward the intermediate monocytes. These monocytes interact with other immune cells and endothelial cells. Okay, so ये action होना ही है. But during poor placentation, look at picture B, that is the pre-eclampsia. More and more soluble factors are produced from the diseased placenta. Placenta अच्छा नहीं है तो वो गलत factors तैयार करेगा. That is, those factors are pro-inflammatory cytokines, macropeptides, exosome, anti-angiogenic factors, ATP, fetal DNA. ये यहाँ पे उन्होंने वो लिखा है तो वो आप देख लीजिए. Then these factors are get produced from the diseased placenta, and those factors then further activate the monocyte subset and the further maturation of classical monocyte towards the intermediate monocytes, resulting in an increased number of intermediate monocytes. Then activated monocyte produce various pro-inflammatory cytokines. These cytokines further activate the monocytes as well as the other immune cells and the most important endothelial cells. तो endothelial cells कहाँ पे होते हैं? So inner lining of all vessels. So that includes cerebral vessels,
That includes the glomerular vessels in kidney, then the heart vessels, all kind of vessels, then the placental vessels. So this vicious circle of activation of monocytes and other immune cells and endothelial cells finally results into the symptoms of preeclampsia, that is hypertension of proteinuria. जैसे मैंने कहा, it's a chain reaction, वो याद रखना है हमें कि नॉर्मल मोनोसाइट रिएक्शन जो है वो हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए जरूरी भी है. Those will protect the placenta, that is the fetus, and the mother from the invading pathogens, some kind of bacteria, some kind of viruses like torch viruses. But if the poor placentation or the diseased placenta उसमें है तो वो गलत तरीके से other factors तैयार करेगा, and that will leads to the vicious circle. Okay, so there are I have just listed some of them. So cytokines बेनिफिशियल भी है एंड पैथोलॉजिकल भी है. जैसे हमारे त्रिदोष है, जो अगर साम्यावस्था में रहेंगे तो वो आरोग्य देंगे, अगर नहीं है मिथ्या प्रमाण में रहेंगे, जैसे अयोग हो, अतियोग हो, कैसे भी हो, तो वो डिजीज तैयार करेंगे. सो ये आपको चाहिए तो लिख के मतलब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं. सो जैसे ये जो अभी देखिए, ये नंबर 1 का जो IFN है वो प्रेगनेंसी रिकॉग्निशन इन रेगुलेशन जो है वो पैथोलॉजिकल क्या करता है, ब्लॉक द प्लेसेंटा डेवलपमेंट. देन माइक्रोसेफेली, क्रेनियल कैल्सिफिकेशन, ऐसे है. सो देयर आर मल्टीपल, सो आई हैव एनलिस्टेड सम ऑफ देम, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट. जैसे कभी कभी पेशेंट को मलेरिया हो जाता है तो इट विल लीड टू प्लेसेंटल डैमेज इन सम पेशेंट्स. देन सम कुछ है जो वो इंड्यूसेस एबनॉर्मल सेरेब्रल डेवलपमेंट. सो देन द टॉक्सोमल अस्थमा इन्फेक्शन, देन द IL-1 बीटा जो है वो अलग है. देन सो इस प्रकार से हमें एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, देन द जैसे पिछले इसमें देखा था कि सेरेब्रल डेवलपमेंट में है या फिर प्लेसेंटा को कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सब दिखाई देता है. देन द ऑटिज्म, अभी ये देखिए IL-17, इंटरल्यूकिन 17, ये जो फैक्टर है वो इंड्यूसेस ऑटिज्म लाइक फिनोटाइप एंड एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट. सो ये जो चीजें हैं दैट वी कैन नाउअडेज वी कैन मेजर इन द ब्लड सैंपल्स. सो इसके लिए फिर वो अलग अलग मार्कर्स रहते हैं जो हम प्रेगनेंसी में करते हैं अगर जरूरत होने पर, अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स है तो. देन एम्ब्रियो के लिए टॉक्सिक है तो दैट लीड्स टू अर्ली ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस. सो सच काइंड ऑफ इंटरल्यूकिन हमने देखे कि जो तैयार होते हैं एंड विच कैन कॉज द ऑटोइम्यूनिटी एंड अगेन developed into early pregnancy losses. So what is the relation between the reproduction and the immune system? So you can see here the ratio of type 1 and type 2 cytokine production of lymphocytes is decreased during pregnancy while monocytes and granulocytes are activated. So नैसर्गिक तरीके से ही साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन कम होता है लिम्फोसाइट्स का, ताकि जो हेल्दी प्रेगनेंसी है उसमें ये साइटोकिनिन का जो प्रमाण है वो कम रहेगा एंड मोनोसाइट एंड ग्रैनुलोसाइट का. इसीलिए हम कभी भी CBC देखते हैं नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या जो है वो ज्यादा दिखाई देती है बहुत बार. Then the sexual dimorphism in the immune response in humans is obvious. Females produce more vigorous cellular and humoral immune reactions, more resistant to certain infections such as bacterial infections, and but the female has higher incidence of autoimmune diseases. So disease expression is affected by the reproductive status. The patient with immune-based diseases like multiple sclerosis, asthma, SLE, then they may have exacerbations during specific period of the menstrual cycle or pregnancy. So अभी हमें ये देखना है कि autoimmune disorders जो है वो है
इसलिए बच्चा नहीं रह रहा है, दैट मीन्स द पेशेंट सफरिंग फॉर द इनफर्टिलिटी, और द प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी विथ जैसे पहले से ही उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस या अदर सोरियासिस जैसे और द रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है। तो उन दो सब में अलग अलग हमें काम करना पड़ता है। So changes in disease expression during pregnancy may be due to decrease in TH1 and TH2 ratio जो हमने sorry, so during pregnancy ये sorry, excuse me. So we can see the changes in disease expression during pregnancy. जैसे कि किसी किसी को सोरियासिस है लेकिन वो थोड़ा कम हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे पेशेंट्स बताते हैं कि ये चीज जो थी मुझे पहले नहीं थी, प्रेगनेंसी के बाद हुई, या फिर पहले थी लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में फिर से हो गया। सो दिस इज टिपिकल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। यू कैन take this detailed history, then you can easily get the pathophysiology of this autoimmune disorder. Then estrogen increases the antibody production while the testosterone decreases the antibody production. So there are some non-specific immune response that are involved in various reproductive processes such as ovulation and menstruation. Because in during ovulation and menstruation again there are hormonal changes, so which alters the antibody production. इसलिए हमें दिखाई देता है कि जिसका पीसीओडी है या फिर ऐसे क्रॉनिक पीसीओ है जिसे, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है, तो उन पेशेंट्स में इम्यूनिटी बहुत कम रहती है या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स उन केसेस में हमें जरूर दिखाई देते हैं। देन सो हियर हम और एक चीज देखेंगे कि जैसे कि एंटीबॉडीज जो होती है वो क्या होती है। तो उसमें मैं बताना चाहूंगी कि एंटीबॉडीज विच दोज आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय व्हाइट ब्लड सेल्स which are normally circulate in the blood to defend against foreign invaders such as bacteria, viruses and other toxins. But autoantibodies क्या होती है? Instead of acting against foreign invaders, they attack on the body's own cells. This is abnormal. So this is the difference between antibody and autoantibody. So for example, हम इधर लेते हैं anti-nuclear antibodies का, which is unique group of antibodies which have the ability to attack the structures in the nucleus of the cells. So directly attack on the nucleus. Anti-nucleic antibodies. The nucleus of a cell contains genetic material known as the DNA. So it affects or it fight against the DNA of the cell. So ऐसे अगर ANA पॉजिटिव पेशेंट है तो वो उसमें प्रेगनेंसी लॉसेस या फिर इनफर्टिलिटी जैसे केसेस हमें दिखाई देते हैं। नाउ कमिंग टू द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे इम्यून सिस्टम अब अभी ये हुआ है, रिपीट नहीं लेती हूँ, लेकिन इसमें सम ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है वो है हाशिमोटो, थायराइडाइटिस, ग्रेव्स डिसीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, lupus and alopecia. With an autoimmune disease, the immune system mistakenly attacks the healthy cells and it is called as the friendly fire. जैसे हम अभी इसमें मराठी समझ में किसी को आता है तो हित शत्रु जिसे कहते हैं ना, जैसे मैं हमेशा पेशेंट को भी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अगर हमारे देश के बॉर्डर में हमारे सोल्जर्स तैनात है, दोज आर WBCs, कि हमें पता है कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो दो चाइना है, दोज आर नोन हमारे जो है वो उधर से हमें अटैक हो सकता है। सो वी आर वेरी कॉन्शियस, अलर्ट कि कभी भी हमला हो सकता है, तो वी आर रेडी। बट अगर हमारे इसमें ही हमारे देश के अंतर्गत ही अगर कोई है, जैसे स्लीपर सेल्स जिसे कहते हैं कि वो कभी भी उठ के अटैक करते हैं,
तो वो 2000 ऑटो एंटीबॉडीज, तो उनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. द सेम थिंग हैपेंस विद अवर बॉडी कि इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं लेकिन ऑटो एंटीबॉडीज से लड़ना मुश्किल हो जाता है. So you can see the modifying factors, then the endocrine transitions. जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अगर आप देखते हैं तो कभी हो सकते हैं तो एट द टाइम ऑफ एंडोक्राइन ट्रांजिशंस, हमेशा. तो उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है. पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो उस हिसाब से हमें हिस्ट्री हमें लेनी है या फिर उसमें हमें उनको अलर्ट करना है. जैसे प्यूबर्टी है, एडोलेसेंस एज है, देन द प्रेगनेंसी एंड द मेनोपॉज. ये जो 3 अवस्थाएं हैं, स्त्री विशिष्ट अवस्थाएं, उसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कभी भी एग्रीवेट हो सकता है. जैसे कि हमने देखे कि साइटोकाइनिन तो है ही प्रेजेंट हमारे इसमें, जैसे कैंसर भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जैसे कैंसर के सेल्स भी हमारे इसमें रहते ही है, लेकिन जब तक वो ट्रिगर नहीं होते और चेन रिएक्शन फॉर्म नहीं होती तब तक हमें वो डिजीज नहीं होता. सो ऑल दीज रिलेटेड विद द cytokinin production and afterwards the chain reaction. Then so again the first slide हमने ये देखी थी कि जिसमें तो इसमें फिर से मैंने just recap लिया है कि जैसे these are the autoimmune diseases. So कैसे पता चलता है कि ये ऑटोइम्यून है या नहीं है? सो द सिम्टम्स लाइक फटीग, वेट चेंजेस, देन ऐसे अचानक से होता है तो विच कैन रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द थायराइड फंक्शन. देन द अचानक से किसी को नर्व सेल पे अटैक होता है तो दैट रिजल्ट इन टू डिफिकल्टीज विद द कोऑर्डिनेशन एंड द वॉकिंग, दैट सजेस्ट द मल्टीपल स्क्लेरोसिस. देन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अचानक से जॉइंट पेन होना, जॉइंट में स्वेलिंग होना, देन द इम्पेयर्ड जॉइंट फंक्शन. सो इस प्रकार से हमें ये डिसऑर्डर्स के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं. सो अभी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो इतना बड़ा टॉपिक है, अभी बाकी के भी स्टाइलवार्ड्स या जो प्रैक्टिशनर्स है वो ले रहे हैं आपका. तो अभी मैं इसमें से ये आपको बताऊंगी कि जो प्रेगनेंसी रिलेटेड है इस पर, और उसमें से भी एक ही हम आगे लेके जाएंगे क्योंकि वो भी बहुत बड़ा है. मतलब तो अगर हमें दिखाई दे तो कॉमनली सीन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है वो है एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ह्यूमन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जैसे कि प्रेगनेंसी में एकदम से प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है. देन मायस्थेनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई इन प्रेगनेंसी. सो अगर हमें ऐसे अगर शंका है कुछ तो हम क्या करते हैं, जैसे किसी पेशेंट में अर्ली रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉसेस है तो ये सब इन्वेस्टिगेशन हम करके लेते हैं, जिसमें टॉर्च इन्फेक्शन तो सब लेते हैं लेकिन दिस इज द ओनली माइनर इन्वेस्टिगेशन. लेकिन उसके साथ साथ हमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज सबके आईजीजी और आईजीएम करके लेने हैं. आईजीजी जो है वो हमें इट सजेस्ट द प्रीवियस इन्फेक्शन एंड आईजीएम इज द करंट इन्फेक्शन. देन द लूपस एंटीकोएगुलेंट, थायराइड एंटीबॉडीज, प्रोटीन एस एक्टिविटी, कोएगुलेशन प्रोफाइल, बीटीसीटी, प्रोथ्रामिन टाइम, पार्शियल प्रोथ्रामिन टाइम, देन द एपीटीटी. देन द एक पेशेंट थी मेरे पास तो इसलिए मैंने उसका एक फैक्टर यहाँ लिखा है. सो देयर आर सर्टेन कोएगुलेशन फैक्टर्स वी नो, वी आर अवेयर, दैट इज द फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी, यू कैन रिमेम्बर 13 फैक्टर्स वगैरह रहते हैं. तो उसमें से फैक्टर 5 जो रहता है उसमें से अगर म्यूटेशन अगर हो जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज द लीडेन म्यूटेशन जी 1691 ए म्यूटेशन. तो वो एक मेरे पेशेंट में दिखाई दिया था. उसमें उसके 8 जो थे वो अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस थे 6 to 8 वीक्स में. तो उसमें ये फैक्टर का म्यूटेशन दिखाई दिया था. दिस इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगेन. तो उसमें प्रोटीनेज एक्टिविटी भी बढ़ जाती है. सो ये जो चीजें हैं ये हमें इन्वेस्टिगेशंस में करके लेनी है. तो अभी ये इससे पता क्या चलता है हमें कि साध्यासाध्यत्व पता चलता है
जैसे कि मैंने जो अभी एग्जांपल दिया पेशेंट का, उसमें फैक्टर बी का अगर म्यूटेशन हो गया है, सो वी कैन नॉट चेंज दैट म्यूटेशन। अभी तक जेनेटिक इंजीनियरिंग में इतना एडवांस नहीं हुआ है, जब होगा वो आगे शायद इसके ऊपर भी काम करेंगे, म्यूटेशंस के ऊपर। लेकिन जब म्यूटेशन हो जाता है तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। चेन रिएक्शन हैज हैपेंड, ओके, रेडियो एक्टिव की जैसे है, जैसे हो गया, फूट गया वो बॉम्ब, वैसे म्यूटेशन होने के बाद हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो सहज विकृति बाद में एम्ब्रियोज में तैयार करते हैं और दैट लीड्स टू द अगेन द प्रेगनेंसी लॉसेस। तो ऐसे केसेस में हमें फिर एडॉप्शन या फिर अदर जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो हमें बताने पड़ते हैं। तो साध्यात्व पता होने के लिए ये जो इन्वेस्टिगेशंस है वो थोड़े जरूरी है। तो ये जो ट्रीटमेंट है, तो इसमें ये जो इन्वेस्टिगेशंस है, तो उसमें मैं बात करूंगी, जो पहले भी कहा था अभी 2-3 स्लाइड पहले, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो है ना वो बहुत जिसका पॉजिटिव आता है, इसमें भी 4 लेवल्स आते हैं, 1+, 2+, 3+ एंड 4+। सो 1+ इज वेरी माइल्ड टाइटर रहता है, लेकिन 1:3600 ये टाइटर अगर रहेगा तो दैट इज हाई। सो उस केसेस में, ऐसे केसेस में फिर प्रेगनेंसी रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा या फिर असाध्य ही कहना पड़ता है ऐसे केसेस में। देन द ट्रीटमेंट जो होती है इसमें अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न में बोल रही हूँ उधर कि टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, टू रिलीव सिम्टम्स एंड टू रिबैलेंस अफेक्टेड हार्मोन्स। एंड ऐसे केस में जो भी परमानेंट डैमेज हो गए हैं ऑर्गन्स में, तो उसको उनके यहाँ तो कोई नहीं है कि वो कोई उसको रिवर्स कर सके। एटलीस्ट दे कैन स्लो द रेट ऑफ परमानेंट डैमेज टू द ऑर्गन्स। तो इतना ट्रीटमेंट वो करते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ अभी एक देखेंगे, क्योंकि जैसे टाइम देखते हैं तो और भी मेरा काफी आधा प्रेजेंटेशन बाकी है अभी, तो उसमें से हम एक देखेंगे जो विच इज वेरी मच कॉमन, दैट इज एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, दैट इज APS। सो उसमें जो क्या होता है उसमें, तो इट्स ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, उसमें दैट प्रीडिस्पोजेस द पेशेंट to the thrombosis during the pregnancy, that increases the risk of intrauterine fetal demise, that is intrauterine death of the fetus, IUGR, PIH and preeclampsia. So इसमें क्या होता है एक्चुअल में, तो एंटीफॉस्फोलिपिड डिसऑर्डर में होता है कि द पेशेंट्स हैव द ऑटो एंटीबॉडीज टू द फॉस्फोलिपिड बाउंड प्रोटीन्स। अभी हमारे ऑल सेल मेम्ब्रेन्स और मेडअप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। सो उसकी वजह से क्या होता है, वेनस और आर्टेरियल थ्रम्बस में ऑकर। द पैथोफिजियोलॉजी अगेन हियर दे डोंट नो, but the diagnosis is done by the blood test, and for the treatment they use the anticoagulation treatment, that is the use of heparin or the other aspirin, colspirin, वो anticoagulants use करते हैं। तो अभी इसमें देखेंगे कि सिंड्रोम हम पता कैसे करेंगे। आपके पास पेशेंट आएगी तो आपको हिस्ट्री कैसे मिलेगी कि this syndrome is suspected in the woman with the history of any of the following, that is more than 1 unexplained fetal losses or more than 3 unexplained embryonic losses. Fetal means different and embryonic means the immediate, जो first 5 to 6 weeks में ही हो जाता है। Then the prior unexplained arterial or venous thromboembolism, किसी को DVT की हिस्ट्री है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वगैरह, तो वो अगर मतलब विदाउट प्रेगनेंसी ऑल्सो, तो उसमें भी हम ये जरूर चेक कर सकते हैं। देन द न्यू आर्टेरियल और द वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो एकदम से पैर में सूजन आना, वेरिकोज वेन्स होना, वो पैर में हो सकते हैं या फिर वल्वा एरिया में भी हो सकते हैं, तो वो हमें पूछने हैं। देन डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो उसमें दैट इज द मोर देन वन ऑफ द लेबोरेटरी क्राइटेरिया अबाउट, जो हमने टेस्ट देखे हैं उसमें से, जैसे कोएगुलेशन प्रोफाइल, देन द एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज वो चेक करते हैं।
then the more than one unexplained deaths or morphologically normal fetus at more than 10 weeks of gestation. जैसे ग्रॉस एनोमली किसी को नहीं है और ऐसे मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल जो है, जो अल्ट्रासोनोग्राफी से या डायरेक्ट एग्जामिनेशन से पता चलता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ग्रॉस एनोमलीज जैसे एनेंसेफेली हो, मैक्रोसेफेली हो या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो. Then more than one premature birth of morphologically normal again, less than 34 weeks because of eclampsia or severe pre-eclampsia or features of placental insufficiency. जैसे कि पानी एकदम से there is a oligohydramnios. तो ये जो चीज होती है वो ऐसी चीज में जैसे चौथे महीने में, पांचवें महीने में जीरो होता है, लाइकर इज जीरो, then it is a severe sign of pre-eclampsia or the severe sign of placental insufficiency. Then more than 3 unexplained consecutive spontaneous pregnancy losses at less than 10 weeks of gestation with maternal anatomic or hormonal abnormalities and paternal and maternal chromosomal causes excluded again. सो इधर जैसे कि सेप्टम है या फिर हार्मोनल जैसे क्रॉनिक पीसीओडी है, ल्यूटेल फेज डेफिशिएंसी, देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन. उसमें से हमें ये डायग्नोज करना है. तो जैसे मैंने कहा था कि एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की जो ट्रीटमेंट रहती है मॉडर्न साइंस में, वो इट्स अ प्रोफिलैक्सिस विद एंटीकोएगुलेंट्स एंड द लो डोज एस्पिरिन, वो चालू रखते हैं. एंड देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे गिव द लो डोज एस्पिरिन और द लो डोज हिपैरिन फ्रॉम द कंसेप्शन. सो दे विल प्रिवेंट टू फॉर्म द थ्रोम्बस इन द प्लेसेंटल वेसल्स एंड दे कैन प्रिवेंट द मिस्ड अबॉर्शंस. सो ये जो है, दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न साइंस. Now coming to our आयुर्वेदिक लिटरेचर. सो इसमें हम काम कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये सब लेके पेशेंट आती है, ये सब इन्वेस्टिगेशंस लेके हमारे पास जब आते हैं पेशेंट, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी थोड़ा हम एक काम करेंगे. तो शायद ही आपको पता होगा, थोड़ा ही बोलूंगी इसके ऊपर. कुछ काम जो है मेरे ख्याल से पहले के लेक्चरर्स ने लिए होंगे. सो उसमें आप पता है कि वैदिक क्षमत्व जो है, ऐसा जो शब्द है वो ऐसे डायरेक्ट संहिता में हमें दिखाई नहीं देता, टीका में दिखाई देता है, कि जिसमें हमें ये जो है कि व्याधि बल विरोधित्व, व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्व, ये जो है वो हमें उसके बारे में जो है वो हमें ऐसी संहिताओं में या टीकाओं में उसके रेफरेंसेस जो है वो हमें पता चलते हैं. तो जैसे कि अतृणे परितो वन्नी स्वयं वो उपशाम्य थी, जैसे कि जिधर ग्रास नहीं है उधर अगर वन्नी जैसे आग लग जाए तो वो अपने आप ही बुझ जाती है, क्योंकि उधर ग्रास जिससे वो फैल जाए वो है ही नहीं. तो उसी हिसाब से, और जो चरक का सिद्धांत है कि विरुद्ध गुण संयोगे भूयस अल्पम ही जीयते, कि जैसे में दो विरोधी गोष्ठियों का अगर संयोग होता है तो उसमें से जो बलवान है वो रहेगा और जो अल्प बल है वो नहीं रहेगा. सो उसमें कैसा है कि देह धातु को जो विरोधी द्रव्य है उसका अगर शरीर में प्रवेश होता है तो उसको देह धातु भी ही विरोधम आपद्यन्ते, देह धातु से विरोध या प्रतिकार उसका किया जाता है. तो अभी ये जो है ये किस किस चीज पे डिपेंड होता है. हर पेशेंट का या हर व्यक्ति का वैदिक क्षमत्व एक जैसा नहीं होता. तो वो जो डिपेंड होता है वो है धातु सारत्व के ऊपर, स्रोतस के प्राकृतत्व, अग्निबल एंड ओज बल के ऊपर ये डिपेंड होता है. अभी हमें अर्थापत्ति तंत्र युक्ति पता है कि उन्होंने उसमें कैसे कहा है कि हमें चरक सूत्र स्थान में एक रेफरेंस है कि वैदिक क्षमत्व कैसे होता है वो उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन वैदिक क्षमत्व कौन से शरीर में नहीं होता है वो कहा है. तो वो अर्थापत्ति तंत्र युक्ति से पता होता है कि इसमें नहीं होता है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट में होता है.
तो जो शरीर जो है वो अति स्थूल है, अति कृश है, जिनके शरीर में अनिविष्ट मांस, रक्त, अस्थि, यह अनिविष्ट है या शिथिल है, दुर्बल है, असात्म्य आहार का सेवन करते हैं, बहुत ही अल्प आहार लेते हैं, और उनका अल्प सत्व है, मतलब अवर सत्व, हीन प्रकार का मानसिक बल है, ये जो है भवंती व्याधि, अव्याधि सहानी, मतलब उनको वो व्याधि सह नहीं सकते, और विपरीतानी व्याधि सहानी, तो ये जो है व्याधि क्षमत्व उसमें जो मतलब अति स्थूल नहीं है, अति कुश नहीं है, ऐसे अपोजिट इन सब का ऊपर अगर हम लेंगे, जिनका प्रवर सत्व है उसमें वो व्याधि क्षमत्व उनका अच्छा होता है। अभी शरीर बल और अभी एक एक चीज थोड़ा सा देखेंगे, जैसे शरीर बल और व्याधि क्षमत्व किसमें देखते हैं कि जैसे कि बलवत पुरुषे देशे जन्म, बलवत पुरुषे काले च सुख काले योगा, बीज क्षेत्र गुण संपन्न, शरीर संपन्न, स्वभाव संसिद्धि। सो ये जो चीजें हैं ये अगर सही मात्रा में है, बराबर है, देश बल मतलब जैसे हेमंत काल में जन्म है, और कश्मीर जैसे मतलब ठंड प्रदेश में अगर जन्म है, जंगल प्रदेश में जन्म है, तो उनमें सहज बल जो होता है और बल ऋतु और वय के अनुसार कालज बल है, वो सब में अच्छा ही होता है। अभी जैसे पेशेंट आपके पास आती है 40, 45 की 45 की उम्र में, और विथ लॉट ऑफ इनफर्टिलिटी सिम्टम्स लाइक अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस, तो उसमें उन्होंने कालज बल नहीं रहेगा। वह के हिसाब से जो रिप्रोडक्टिव एज है वो 40 के ऊपर फिर एक क्वालिटी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम हर चीज का बल जो है वो हम देख सकते हैं। जो आरोग्य में, आरोग्य जो है वो बलाधिष्ठान में है। सो प्रक्षिणम च बलम यस्य नासौ शक्यम चिकित्सितुम, सो दुर्बल रोगी की चिकित्सा नहीं की जा सकती है। देन मानसिक बल जो है तो उसमें हमें दो, ये सबको पता है, भीरुत्वस्य रोग कर्तृत्वात् विषादो रोगवर्धनानाम। अभी कोरोना के बीच में देखा हमने कि बहुत से लोग तो घबराए थे, इसकी वजह से ही उनका रोग बढ़ गया। सो विषादो रोगवर्धनानाम, ये विषाद जो चीज है वो बहुत अलग होती है। तो विषाद से ही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स तैयार होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसीलिए मानसिक बल के ऊपर हमें बहुत ही चिकित्सा करनी पड़ती है इनफर्टिलिटी के केस में, क्योंकि जब पेशेंट्स के प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं तो उसका मानसिक बल जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। शी इज वेरी मच वल्नरेबल, तो कोई भी किसी ने कुछ भी कहा तो वो रोना चालू हो जाता है उसका। तो इस प्रकार से उसका जो मानसिक बल है वो बहुत ही अवर या फिर हीन ऐसे हो जाता है। देन रोगा सर्वे भी मंदेग्नु, अग्नि जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही हमारे इसमें, तो वो भी हम आगे जाके देखेंगे। देन इधर अष्टो निंदतीय वैदिक क्षमत्व धात्वग्नि विकृति हमें दिखाई देती है। तो अभी हमने एक श्लोक जो देखा था पुनर्व्याधि सहानी में, तो उन्होंने उधर उसमें 3 धातुओं का वर्णन किया था, मांस, शोणित एंड अस्थि। तो उसी में ही विकृति हमें पता पड़ती है अष्टोनिंदितीय में। जैसे अति स्थूल, अति कृश, ये दोनों ही अभी हम आयुर्वेद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लगा के देखते हैं तो पीसीओडी में हमें दिखाई देता है। देन अति दीर्घ, अति रस्व अस्थि धातु में दिखाई देता है, इसमें भी एड्रिनल जो है वो हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। अलोम, अतिलोम, हिरसुटिज्म भी है, वो भी हमें पीसीओडी में दिखाई देता है। अति गौर, अति कृष्ण तो रक्त धातु का वर्णकारी विकृति है, लेकिन रक्त धातु रिलेटेड जो है वो ज्यादा हमें इसमें काम करना जरूरी है, ऐसा हमें दिखाई देता है। देन वैदिक क्षमत्व और ओज का जो है वो डायरेक्ट संबंध हमें दिखाई देता है। ओज आपको सबको पता है, उसमें मैं नहीं जाऊंगी कि सब ऑल शुक्रांतानाम परमस्पतम, सब धातुओं का तेज जो है वो ओज है। सो यन्नाशे नियतन नाशो यस्मिन तिष्ठति तिष्ठन्ति, जैसे उसका नाश हो गया तो आदमी का भी मृत्यु निश्चित है। देन प्राण का बल भी जो है जो हमें मिलता है वो ओज जनित होता है। तो उसमें भी 2 टाइप है, पर ओज और अपर ओज। तो अपर ओज के जो विकृतियां है, ओजो व्यापत, ओजो विश्रंस और ओजक्षय।
और पर ओज अगर नष्ट हो जाता है तो प्राणनाशी हो जाता है। सो ओजक क्षय के हेतु अगर हम देखते हैं तो अति व्यायाम, अनशन, अति उपवास, अति चिंता, अति रुक्ष, अति अल्प प्रमिताशनम, देन वात, आतप, भय, शोक, रुक्षपात, प्रजागर। सो ये जो चीजें है, यह अगर बार बार हेतु सातत्य अगर पेशेंट में दिखाई देता है तो उसमें ओजक क्षय के हेतु हमें जरूर दिखाई देते हैं। लक्षणों में क्या दिखाई देता है तो कोप, ध्यान, शोक, शर्मादि भी, विभेति, दुर्बलो, अभिक्षणम ध्यायति, व्यथित इंद्रिय। अभी हमारे पास जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं वो व्यथित इंद्रिय रहते हैं, विभेति, बहुत उनको घबराहट होती है कि अभी प्रेगनेंसी रहेगी क्या, नहीं रही तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, या फिर रही भी तो कैसा बच्चा होगा, बीच में अगर किसी को प्री एक्लाम्शिया पहले होके गया है तो इस बार भी होगा क्या। तो इस प्रकार के व्यथित इंद्रिय मतलब जो है वो पेशेंट रहती है। देन उसमें ट्रीटमेंट के लिए जो उन्होंने कहा है कि जीवनीय औषधि सिद्ध क्षीर जो है, मांसरस है, वो तत्र भेषजम, ओजो वृद्धौ ही देह से तुष्टि पुष्टि बलोदया। सो ये जो ओज का अगर वृद्धि हो जाता है तभी आपका शारीरिक मानसिक बल जो है वो बढ़ेगा। देन ओज विश्रंस लक्षण है, ओजो व्यापद लक्षण है, इसमें मैं अभी नहीं जाती हूँ डिटेल में। देन जो दो चीजें हमें प्रेगनेंसी में दिखाई देती है या प्री प्रेगनेंसी में दिखाई देती है वो है प्रमेह, इंसुलिन रेजिस्टेंस प्री डायबिटिक में भी दिखाई देता है, या फिर डायरेक्ट प्रेगनेंसी जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज है या प्रमेह होता है तो उसमें ओज जो है वो दूष्य हमें दिखाई देता है। जैसे कि अगर आप इसमें देखें तो जो प्रमेह के दूष्य संग्रह है उसमें जो उन्होंने मज्जा रस ओज पिशितंच दुष्याः प्रमेहिणां विंशतिरेव मेहा, तो ये जो 20 टाइप्स ऑफ प्रमेह है उस सब में ओज की दृष्टि जो है वो उन्होंने बताई है। देन पांडु की संप्राप्ति भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी जो बढ़े हुए दोष है उससे ओज बिगड़ जाता है। ये उन्होंने यहाँ व्रजंती क्षम अत्यर्थम दोष दूष्य प्रदूषणात् इंद्रियाणां बलं हत्वा तेजो वीर्योजसी तथा पांडुरोगम करोत्याशु बलवर्णा अग्निनाशनम। सो उसमें उन्होंने कैसे कहा है कि प्रकोपी दोषों से पित्त प्रधान दोष यहाँ कहा है उन्होंने, शरीर के सब धातु जो है वो बिगड़ जाते हैं और उनका सहनन जो है, इसीलिए जीर्ण पांडु में हमें धातु शैथिल्य दिखाई देता है और ऐसे केसेस में बाद में मक्कल वगैरह पेशेंट गर्भिणियों में दिखाई देता है। तो वो धातु शैथिल्य जो है उसकी वजह से वो सभी धातुओं में शैथिल्य, ऐसा नहीं कि सिर्फ मांस में है, रस रक्त सब में धातु मतलब जो है वो आसार है, वो धातु शैथिल्य है। तो उसमें से ओज की उत्पत्ति जो है वो ठीक तरीके से ठीक नहीं होती है और उसी से जो बड़े हुए त्रिदोष है उसमें से ओजों की दुष्टि हो जाती है। और ओज अगर एक बार बिगड़ जाता है तो उसी से इंद्रियों की दुष्टि जो है वो इमीडिएट हो जाती है। सो इंद्रियाणां बलम हत्वा तेजो वीर्योजसी तथा, तो उसकी वजह से बल वर्ण एंड अग्नि का नाश हो जाता है। देन उसके साथ हमें जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे वैदिक क्षमत्व में रक्त, मांस और अस्थि, ये तीनों का वैदिक क्षमत्व से डायरेक्ट संबंध है। ये तीनों अगर रक्तसार, अस्थिसार और मांससार अगर पेशेंट हमारी है तो उसमें हमारा साध्यत्व अच्छा रहेगा। लेकिन उसी स्रोतों की दृष्टि अगर ज्यादा हमें दिखाई देती है तो उसके हिसाब से हमें वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स दिखाई देते हैं। जैसे रक्त व स्रोतों की दृष्टि है तो फिर हमें मल्टीपल प्रेगनेंसी लॉसेस, सोरियासिस ऐसे केसेस दिखेंगे, स्किन डिजीज के प्रॉब्लम आएंगे। अस्थि मज्जा का अगर है तो फिर हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, रूमेटॉइड डिसऑर्डर है, तो उस हिसाब से हमें ये दिखेंगे। माउस की दृष्टि होती है तो मायस्थेनिया ग्रेविस जैसे है, न्यूरोलॉजिकल भी है और ये भी है। माउस का भी सारत्व कम होता है तो उसमें हमें वो दिखाई देती है। तो ये सब जो है ना, ये
आयुर्वेदिक जो बायोलॉजी है हमारी शारीरिक स्थान में, ये सब हमें पता चल जाता है अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें से मैं अभी जैसे हम एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे रक्त व स्रोतस दृष्टि हेतु। तो उसमें चरक विमान स्थान में हमें पता चलता है विदाहिनी अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहिनी दुष्यंती वजतान चातपानल। सो आतप अनल अग्नि सेवा, बार बार धूप में घूमना और विदाही अन्नपान लेना, ये जो चीजें हैं उससे रक्त व स्रोतों की दुष्टि हो जाती है और रक्त जो है वो दुष्ट हो जाता है। तो ऐसा रक्त जो है तो वो ऐसे असृजा अप्रजा रक्तजा योनि व्यापक तैयार करता है। तो चरक चिकित्सा स्थान में उन्होंने कहा है कि रक्त पित्त करेर नार्या रक्तम पित्तेन दूषितम अति प्रवर्तते योन्याम लब्धे गर्भे पिसासृजा, कि जैसे रक्त पित्त कर आहार अगर स्त्री ने लिया है तो वो उसका रक्त जो पित्त से दुष्ट होकर गर्भधारणा होने के बावजूद भी, नॉर्मली गर्भधारणा जब होती है तो योनिगत रक्तस्राव नहीं होना चाहिए, लेकिन गर्भधारणा होने के बाद जब अगर रक्तस्राव होता है योनिगत रक्तस्राव, तो वो असृजा योनि व्यापक की जिसमें बार बार फीटल लॉस जो अभी हमने देखा वो दिखाई देता है। तेन रक्तयोन्याम अश्रुवर्णे अनुबंधम समीक्ष्य च तत कुर्याद यथा दोषम रक्त स्थापनम औषधम। तो उन्होंने चिकित्सा तो जरूर कही है कि रक्त स्थापन औषधम जरूर करे। रक्तयोनि और रजस का नाम पुत्रज्ञाश्च हितम घृतम, तो घृत चिकित्सा उन्होंने ज्यादा कही है। तो प्रश्निपल्नी बलावासा क्वात ये गर्भिणी रक्त पित्त चिकित्सा में आया है, तो उसके हिसाब से हम ऐसे तो बहुत है, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा है, तो उसका क्वाथ हम ऐसे पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं। पुत्रग्नि योनि व्यापक, जैसे रोक्षाद वायु यदा गर्भम जातम जातम विनाशेत दुष्ट शोणितजम नार्या पुत्रग्नि नाम सामता। यहाँ भी दुष्ट शोणितज का ही रेफरेंस आया है और इसमें अतिरूक्ष गुण बढ़ने की वजह से गर्भ का विनाश जो है, और बहुत बार पुत्र मतलब मेल फीटस का होता है, इसीलिए उन्होंने पुत्रग्नि कहा है, लेकिन फीमेल का भी हो सकता है, लेकिन अगर हम रेशो देखें तो पुत्र का ज्यादा होता है। तो उसमें भी रोक्षाद वायु, तो ऐसे पुत्रग्नि और रक्तजा योनि की चिकित्सा एक साथ कही गई है और दोनों में ही दुष्ट शोणित जो है, तो शोणित मतलब शुद्धि के लिए, रक्त शुद्धि के लिए हमें चिकित्सा करनी पड़ती है और फिर अबॉर्शंस शायद कम हो जाए, ऐसे प्रकार से कर सकते हैं। देन वामिनी योनि व्यापद है, तो ये तो टोटली वातज योनि व्यापद है कि जिसमें इम्प्लांटेशन फेल्योर्स हमें दिखाई देते हैं, जिसमें वो षडाहात रात्रात्वा, वो श्लोक मैंने इसमें लिया नहीं है, कि जिसमें सवातम उद्गिरत बीजम वामिनी रजसा युतम, ऐसे सुश्रुत ने कहा है। तो उन्होंने ऐसे कहा है कि जब एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है तो गर्भाशय में जो वात प्राधान्य होता है, तो उसकी वजह से वो ऐसे ही इसको बायोकेमिकल प्रेगनेंसी कह सकते हैं या फिर इम्प्लांटेशन फेलियर, जिसमें वो रजसा युतम बाहर ही आ जाता है। और चरक चिकित्सा स्थान में उन्होंने कहा है कि षडाहा सप्तरात्रात्वा, कि जैसे प्रेगनेंसी फॉर्म होने के बाद, जायगोट फॉर्म होने के बाद 6 या 7 रात्र के बाद स्राव हो जाता है। तो दिस इज टिपिकल बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। देन हमें जाता हरिणी के बारे में भी काश्यप संहिता कल्पस्थान में एक रेफरेंसेस मिलते हैं, जैसे अंडग्नि है जाता हरिणी, तो दिस इज द अबॉर्शन इन द ब्लास्टोसिस स्टेज, implantation failure. Duradhara means first trimester abortions. Kalaratri, premature deliveries with neonatal death, IUD. Then Mohini, abortions due to गर्भोपद्रव एंड गर्भव्यापद हम थोड़ा मैं रेफरेंस दूंगी आगे जाके। देन स्तंभनी मीन्स नो फिटरी मूवमेंट्स, दैट इज द बच्चा अगेंस्ट आईयूडी, और या फिर IUGR नागोदर जो है उसमें जाता है। एंड वश्या मीन्स द सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस। सो इस प्रकार से हमारे शास्त्र में भी ये सब वर्णन आता है। तो उसको ऑटोइम्यूनिटी में डाले या नहीं डाले ये ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दुष्ट शोणित जो जरूर है, तो उसमें हमें शोणित के ऊपर काम करना है। देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गर्भोपद्रव एंड गर्भव्यापद। गर्भोपद्रव जो होता है, जो गर्भ होने की ही वजह से हमें शरीर में प्रेग्नेंट गर्भिणी स्त्री के शरीर में
उपद्रवात्मक व्याधि तैयार होते हैं, जिसमें गर्भ इट इज द खुद इटसेल्फ इट इज अ कॉज। तो उसमें शोष और उल्लास, चर्दिष्ट, शोफ, ज्वर, अरुचि, अतिसार, विवर्णत्व, ऐसे 8 उपद्रव हरित संहिता में कहे गए हैं। उसमें से शोफ जो है एंड ज्वर जो है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ज्यादा दिखाई देते हैं। शोफ में भी प्री एक्लाम्शिया, जैसे हमने अभी बात की, वो टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आता है। देन अथ अष्टौ गर्भजागदः, गर्भ व्यापद मतलब गर्भ के ऊपर जो व्यापद आता है, तो उसमें भी उपविष्ट, नागोदर, मक्कल, मूढ़गर्भ, विष्कंभ, गुड़गर्भक, जरायु दोष, अगेन प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी और प्लेसेंटा की डिसीज है, प्लेसेंटा के दोष, ये जो है ये गर्भ व्यापद में आते हैं। तो गर्भ व्यापद में भी हमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स इधर दिखाई दे रहे हैं। सो देन गर्भस्राव एंड गर्भपात, ये भी गर्भ व्यापद के अंदर ही आता है। आ चतुर्था ततो मासात प्रस्रवित गर्भ विच्युति, 4 महीनों तक अगर गर्भ निकल जाता है तो उसे गर्भस्राव कहते हैं। एंड पंचम और षष्ठम मास में उसको ये कहते हैं गर्भपात जो है वो कहते हैं। देन ब्रेल संहिता में एक रेफरेंस हमें मिलता है कि जो भी योनि व्यापद है, ये च विंशति प्रोक्ताः योनि दोषाः चिकित्स्यते एतैश्च अन्यैश्च बहुभिः गर्भो व्यापद्यते स्त्रिया। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गर्भ व्यापद के या अबॉर्शंस के बहुत से कारण है, 100 नंबर ऑफ रीजंस है। तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा है कि जो योनि व्यापद है विंशति, उसमें से भी आगे जाके यही प्रॉब्लम आते हैं और गर्भ के ऊपर व्यापद आ जाता है, और अन्य भी कारण है जिससे गर्भ व्यापद हो जाता है। तो इसमें अगर हम चिकित्सा सूत्र देखें तो जैसे मैंने कहा था कि विषाद ज्यादा होता है, तो विषाद निरहरण करना जरूरी है। उसके लिए शिरोधारा, नस्य, शिरोअभ्यंग, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान वो जरूर करना है। देन आश्वासन चिकित्सा, काउंसलिंग ऐसे पेशेंट को बहुत बार बार हर विजिट पे लगता है। देन उसके साथ अग्निदीपन, तत्त धातु अग्निदीपन, पाचन, रक्त धातु चिकित्सा, दोष निरहरण, जैसे अगर बहुत सुकुमार है, दुर्बल है तो हम शमन देंगे, लेकिन अगर बलवान दोष है, पता है, और बल स्त्री का बल भी अगर अच्छा है तो उसमें हम शोधन चिकित्सा करेंगे। उसके बाद रसायन चिकित्सा, रक्त प्रसादन चिकित्सा, और उसके बाद उत्तर बस्ती या यापन बस्ती आता है। तो इस प्रकार से, इस क्रम से हमें चिकित्सा करनी चाहिए। यापन बस्ती में भी महास्नेह बस्ती, मुस्तादी यापन बस्ती, शतावरी बस्ती, ये बहुत सी सिद्धि स्थान में इसको आपको रेफरेंसेस मिलेंगे, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। देन कल्प में तो बहुत से हैं, मैं एक उदाहरण के लिए देती हूँ। हमेशा मेरा जो लेक्चर लेने में ये रहता है कि सबको निदान ज्यादा समझ में आए, बिकॉज चिकित्सा जो होती है वो निदान परिवर्जन होती है। सो निदान कैसे करें, निदान तक अगर आप रूट कॉज तक जाते हैं तो चिकित्सा के लिए कल्प तो बहुत है। जैसे आप जिधर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेशेंट आपके अफोर्डिंग है नहीं है, उसके हिसाब से आप कोई भी कल्प जो है वो इस चिकित्सा सूत्र के आधार पर यूज जरूर कर सकते हैं। मानस मित्र वटक, सुवर्ण रौप्य युक्त कल्प जो है, सुवर्ण रौप्य सूतशेखर है, ताप्यादि लोह है, महायोगराज, ये मन के ऊपर भी काम अच्छे करते हैं। मौक्तिक कामदुधा। देन रक्त पित्तहर कल्प जो है, वासा, दुर्वा, नागकेशर, सारिवा, मंजिष्ठा, चंदन, शतावरी, यष्टि मधु, औदुंबर जल, या औदुंबर के ये जो अपक्व फल होते हैं ना, हरे फल, वो भी चलेंगे। गर्भस्थापन गण जो आया है वो यूज करते हैं, दशमानी, उसमें से भी जो जो अवेलेबल है, सब तो मिलते नहीं है। देन मासानुमासिक जो क्षीरपाका है, अभी उसके घनवटी भी अवेलेबल है, वो भी जरूर आप यूज कर सकते हैं। जीवनीय जो औषधि है उसके सिद्ध क्षीर जो है, जैसे ओजवर्धक, जैसे मैंने कहा कि चिकित्सा हमें इस प्रकार से करनी है कि रक्त पित्तहर भी करनी है एंड ओजवर्धक भी चिकित्सा करनी है। तो उसमें सिद्ध घृत जो है, जैसे शतावरी है, यष्टि है, फलसर्पी, महाकल्याणक, दाढ़ी मादी, दुर्वा, तो जिस प्रकार के पेशेंट के हेतु है उसका आहार विहार है, उस हिसाब से आपको कल्प का जो
जिसको चॉइस करना है वो आप कर सकते हैं। वातज्ञ चिकित्सा, अभी इधर मैंने डाला नहीं था, लेकिन जो 80 वात विकार 80 वात विकार जो एक्सप्लेन किए हैं उसमें गर्भपात या गर्भस्राव जो है या गर्भनाश उसका उल्लेख है, तो वातज्ञ चिकित्सा भी हमें लगती है। देन ओजवर्धक चिकित्सा में सिद्ध मांसरस, देन जीवनी औषधि क्षीर, सिद्ध क्षीर है, देन घृत है, क्योंकि घृत एंड क्षीर नित्य रसायनानाम श्रेष्ठ हमें पता है, तो उसका जो यूज हमें हर बार करना है। सो व्हाट विल बी आवर टेक होम मैसेज इज द डिटेल हिस्ट्री जो है वो आपको लेनी है, मॉडिफाई उसकी लाइफस्टाइल जो करनी है हमें, फर्स्ट थिंग वो करनी है, आश्वासन चिकित्सा काउंसलिंग करना है, और उसके बाद में आपको अग्निदीपन, दोषपाचन, शोधन, रसायन, योगाभ्यास, प्राणायाम, और उसके बाद उनको चांस लेने के लिए कहना है। तभी हम इसके ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत काम कर सकेंगे। और बाकी संतति जो होता है वो योग होता है, इसमें भी वो मैंने डाला नहीं है कि जब भी हमारे पास ऐसे केस आते हैं तो हमें जरूर बताना है कि जो आत्मज और सत्वज भाव षड भाव से हमारा गर्भ जो है वो तैयार होता है, मातृज, पितृज, सत्वज, सात्मज, आत्मज एंड रसज। तो उसमें से सत्वज और आत्मज के ऊपर हम इतना काम नहीं कर पाते, वो तो खुद उसको ही काम करना पड़ेगा पेशेंट को। तो इस प्रकार से हमें प्राणायाम, देन आश्वासन चिकित्सा, इसके ऊपर भी उतना ही ध्यान देना है। तो मेरे ख्याल से ऑटो इम्यूनिटी जो है वो डेवलप, अभी जैसे मैंने इसीलिए वो साइटोकाइनिन का चेन रिएक्शन बताया था कि खुद हम ही तैयार करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इसके लिए खुद के ऊपर वो काम ज्यादा करना है, पेशेंट को कहना है हमें। सिर्फ कोई दवा दी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो गया, वो नहीं होता है। इसीलिए उसका विषाद जो है वो रोगवर्धन करता है, साइटोकाइनिन रिएक्शन भी उस हिसाब से काम करती है। तो उस हिसाब से हमें उसके विषाद के ऊपर जरूर काम करना है। एंड थैंक यू सो मच अगेन ईश्रेयस इंस्टीट्यूट एंड मेरे ख्याल से शैलेय रसशाला इंस्टीट्यूट, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू वैद्य चिन्मय फोंडेकर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर सच काइंड ऑफ very I can say a different lecture. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, madam, for this laboratory session in very simpler language. Hello. हॅलो, आवाज नाही ऐकू येते. हॅलो, Question you may ask directly. हॅलो, हॅलो. मॅडम, बस्ती चिकित्सेविषयी सांगा, त्याच्यामध्ये उपयोगी काय, कुठल्या एखाद्या याला बघून बस्ती चिकित्सा येते ना, निश्चितच करता येते, पण त्याच्यामध्ये वाताचे हेतू जर जास्ती असतील तर त्याच्यामध्ये बस्ती चिकित्सा निश्चितच करावी. परत मगाशी म्हणलं तसं पेशंटचे हेतू तुम्हाला नीट घ्यायला हवेत, तर त्या ठिकाणी बस्ती चिकित्सा आपल्याला निश्चित देता येते. त्याच्यामध्ये मग तुम्ही प्रकृतीनुसार किंवा हेतूनुसार
वातज्ञ पित्तज्ञ द्रव्यांचा वापर करू शकता. त्याच्यामध्ये तैल आहे, घृत आहेत किंवा यापन बस्तीचा वापरही करू शकता गरज पडली तर ते हेतूप्रमाणे राहील. तुम्हाला काय हवंय नाही कळलं मला, परत जरा डिटेल विचारलं तर सांगते. त्याच्यामध्ये स्पेसिफिकली असं उत्तर बस्ती वगैरे असे काय वेगळं आहे का? तुम्ही असं तुमच्या पेशंटमध्ये नाही वेगळे असं नसतं. नाही वेगळं असं काहीच नसतं. आपली आहे तीच औषधं असतात. म्हणजे उत्तर बस्तीचाही उपयोग होतोच, मी मगाशी जे क्रमाने सांगितलं. पण डायरेक्ट तुम्ही पेशंटला उत्तर बस्तीच नुसते दिले म्हणजे काम होतं असं होत नाही. तर त्याच्या आधी बाकीचे पण हेतू विचारात घेऊन त्याच्यावर काम करायला पाहिजे आपल्याला. तर त्याच्यामुळे तुम्ही तसं काम करून मग उत्तर बस्ती दिले तर उपयोग होतो. उत्तर बस्तीमध्ये तुम्ही कुठले आता मगाशी जसं आले काश्मीरी कुटोचे सिद्ध घृत आलेलं आहे, यष्टी घृत आहे, शतावरी आदी घृत आहे, फलघृत आहे किंवा धान्वंतर तेल आहे, क्षीरबला तेल आहे. पण असं प्रत्येक वेळी अशी पेशंट आल्यावर मी तिला हे एकच औषध देईन असं नाही होऊ शकत ना. आपण हेतूप्रमाणे बदलणार. म्हणून मी यादी सांगितली की या केसेसला हे असं एवढं नाही देता येणार. तर तुम्ही तुमच्या केस प्रमाणे हेतूंची निश्चिती करून दोषांचं प्राधान्य ठरवा आणि त्याप्रमाणे वातज्ञ पित्तज्ञ कफज्ञ अशा प्रकारे औषधांची निवड करायला हरकत नाही. हे निश्चित यश मिळेल. ओके मॅडम, म्हणून तुम्ही शेवटी सांगितले सगळ्यात वस्तूचा विचार करायला. बाकी बरोबर 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 अगदी बरोबर. छान झालं मॅडम. थँक्यू सो मच. Any more question? Yes, we can conclude the today's session. हो चालेल. थँक्यू. कोणाला काही असतील तर नंतर फोन करून विचारले तरी चालेल किंवा वैद्य चिन्मय फोंडेकर सरांकडे पण फॉरवर्ड केलेत तरी सुद्धा चालतील. चालेल. थँक्यू. थँक्यू.